welcome back to my channel. Hope you all are doing really well. This is another skincare video. In my previous skincare video I talked about vitamin C. You all know that I love that ingredient so freaking much. Today I will talk about an acid. Yes, you heard it right, acid. There are so many acids out there which are really amazing for our skin, and they are like wonders. They are wonders. They do miracles for our skin. So I thought, why shouldn't we talk about these acids? And जो भी हमारे अंदर जो डर होता है ना कि एसिड्स अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, तो इस डर को ख़त्म करना चाहिए. एंड फॉर दैट आई थॉट I should talk about this. And one more thing, I will show you that I am not talking anything like this. I am just doing all my jobs properly, and then I will talk about this. So let's begin with the video. One more thing, you may find this area of my face is little ashy, specifically this area. Yes, this area is looking ashy because I applied the Sugar Cosmetics stick foundation. This is a wet test, so I haven't applied anything like concealer or any color corrector. Hope you understand. So just ignore it. This is a kind of series in which I will talk about different acids which are out there in the market and which works like wonders for our skin. So ये एक series kind of है. Today I will talk about kojic acid, and then we'll talk about glycolic acids and salicylic acid and lactic acids and all. एक ही साथ मैं सारे एसिड्स के बारे में बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा इलेबोरेटली सबके बारे में बताना चाहिए एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी कुछ बताना चाहिए. तो मैंने सोचा इसको सेग्रीगेट करते हैं. पहले हम बताते हैं कोजिक एसिड्स के बारे में, विच इज़ माइल्डर फॉर्म, एंड देन विल टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, एंड देन विल गो टू सैलिसिलिक एसिड. सो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस, एंड मैंने इस सीरीज़ को ऐसे ही सोचा है. तो इस सीरीज़ में आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ कोजिक एसिड, एंड इसके बारे में मैं कोजिक एसिड क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है इसका, एंड कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, कब इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, सब कुछ के बारे में ही बताऊंगी. एंड द क्रीम विच आई एम यूजिंग कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी. सो मैंने पूरा डिटेल्स वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. This acid commonly found in cosmetics products like cream, lotions and serums, sometimes in soaps. But despite an acid, it is really safe to use. The acids which I talked about all are safe to use, but you have to incorporate them according to your skin type, according to your skin sensitivity. If you have very sensitive skin, then apply a lower concentrate of any acid which I will talk about in my next videos and in this video. So please first incorporate if your face is not habituated with any kind of acids. So please incorporated very lower concentrate of any acid, and it will be really safe, and your skin will be habituated with the process of the acid. Or if you are using it a proper way, and if you are maintaining the proper process of using it, so be very careful when you are using all this acid. प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, एंड मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बात करूँगी. Don't think that kojic acid is a skin whitening agent like hydroquinone. Hydroquinone is carcinogen, so please do avoid that product, and make sure that you are not using any kind of skin whitening product which contains hydroquinone as an ingredient. So please avoid that because it is carcinogen. That means it can cause or it can increase the chances of skin cancer. So please avoid that. But kojic acid is not at all that type of product. Remember it, kojic acid is not skin whitening agent. It reduces the hyperpigmentation, it penetrates deep into your skin, and it just removes the dark spots, brown spot, or after acne marks, that spots. It reduces the production of melanin. So जहाँ पे हम लोगों का स्पॉट हो जाता है वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता
होता है एंड कोजिक एसिड अप्लाई करने से वो डीप इनटू आवर स्किन जाता है और मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. इट्स रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट्स. इट हैज़ रियली सो मेनी बेनिफिट्स आई विल टॉक अबाउट. तो पहले हम बात कर लेते हैं जी कि कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है. पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विथ हाइपर पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट, मेलास्मा एंड आफ्टर एक्ने स्पॉट्स. तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है. आपको रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करना है एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट. कोजिक एसिड हमारे स्किन को पेनिट्रेट करता है डीप इनटू आवर स्किन, जाके हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है. इसकी वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलास्मा हो जाता है, आफ्टर एक्ने स्पॉट हो जाता है एंड ब्राउन स्पॉट हियर एंड देयर हो जाता है, सन डैमेज हो जाता है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको डील करता है और रिड्यूस करता है. दैट रीजन डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट कोजिक एसिड टू ट्रीट मेलास्मा, टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ after acne, post acne spots and all. So it decreases the appearance of scars, marks, discoloration on our face. So it is really very good to apply kojic acid on our skin because ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्किन को हील करता है. कोई भी अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो, एनी काइंड ऑफ मार्क्स हो, एनी काइंड ऑफ स्कर्स हो, मेलास्मा हो, हमारे स्किन पे सन डैमेज हो जाए स्किन एंड ब्राउन स्पॉट हो जाए उसके वजह से एंड आफ्टर एक्ने जो पोस्ट एक्ने मार्क्स होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हील करने के लिए कोजिक एसिड इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन. ये एसिड सिर्फ स्किन की अपर लेयर पे ही काम नहीं करता है, ये डीप इनटू जाता है क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही अंदर तक जाना होता है, डीपर लेयर तक पहुंचना पड़ता है स्किन का. देन इट कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड कोजिक एसिड वही करता है, वो इनर लेयर ऑफ स्किन तक पहुंचता है एंड मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. ऑल्सो हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टी, जिसके वजह से जब ह्यूमिड एरिया जो होता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब बहुत ही मतलब कि रेनी सीजन होता है तो एट दैट टाइम वी हैव दैट फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फॉर द डर्ट, स्वेट एंड ह्यूमिडिटी एंड ऑल. सो इसको डील करने के लिए भी कोजिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है. एक बात आप याद रखिए, एज दिस एसिड रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, तो इसके वजह से हमारा जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो ब्राइटर होता है. लेकिन आप इसको एक स्किन वाइटनिंग एजेंट की तरह मत यूज़ कीजिएगा, आपका स्किन के ट्रीटमेंट की तरह इसको आप यूज़ कीजिए. दैट विल बी बेटर फॉर यू. आप अगर सोचोगे कि मैं डेली बेसिस पे कोजिक एसिड को अप्लाई करूँगी, मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा और मेरा स्किन का कम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, तो प्लीज़ डोंट डू दिस. आपकी स्किन के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज़ करिए. दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. Kojic acid works really good with vitamin C and glycolic acid. If any cream incorporated with kojic acid, glycolic acid and vitamin C, it will work wonder for your skin for sure. क्योंकि कोजिक एसिड डीप इनटू आवर स्किन जाता है एंड मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. ग्लाइकोलिक एसिड अपर सरफेस पे जो डर्ट होता है, जो डेड स्किन सेल हो जाता है, रह जाता है, उसको रिमूव करता है, स्किन सरफेस को स्मूथ करता है, टेक्सचर्स रिमूव करता है. एंड विटामिन सी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को, जो हमारे स्किन को हार्म करता है, उसको रिड्यूस करता है. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज़ अ पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन फॉर योर स्किन. तो ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन वाला क्रीम मुझे मिला है, दैट इज़ यस डर्माको कोजिक एसिड क्रीम. दिस वन it contains stabilized vitamin C and glycolic acid. It is a treatment for hyperpigmentation, post acne marks and all, and I am using this for my treatment to treat the post acne marks. लेकिन मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पे लिखा है कि आप 2 times इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर टू यूज़ इट फॉर नाइट टाइम बेसिस. एंड आई विल कम टू द पॉइंट व्हाई आई एम टॉकिंग दिस. is because it makes our skin more photosensitive. So इसके लिए मैं अवॉइड करती हूँ, इसको मैं नाइट टाइम के ही ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करती हूँ. लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप घर में हो तब आप इसको अप्लाई करो एज ए डे टाइम ट्रीटमेंट एंड देन उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर लो. लेकिन आप अगर बाहर जा रहे हो तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ एसिड, बिकॉज डे टाइम में एसिड को अवॉइड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि दैट मेक्स एनी काइंड ऑफ एसिड मेक्स आवर
skin very photosensitive, so just avoid acid sometimes makes your skin little bit drier. So बहुत ही एक हेवी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए. मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ चिया सीड 1. फेस शॉप का जो चिया सीड 1 है बहुत ही अच्छा है. बहुत ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा इतना सा लगता है. मेरे लिए तो बहुत ही काफ़ी है बिकॉज मेरा फेस बहुत ही ऑयली है. बट आई प्रेफर यूजिंग दिस एट नाइट. पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, देन वेट करती हूँ 2 मिनट्स के लिए, सो दैट ये जस्ट सीप्स इनटू माय स्किन हो जाए. एंड देन उसके ऊपर मैं कोई स्टेबलाइज्ड विटामिन सी अप्लाई कर लेती हूँ एज अ सीरम. अगर आप चाहो कि विटामिन सी को आप स्किप करोगे तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग सीरम जो होता है लाइक हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड सीरम, ऐसा कुछ मॉइस्चराइजिंग सीरम हो तो उसको अप्लाई कर लीजिए. देन कोई अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर अप्लाई कीजिए सो दैट आपका स्किन कभी भी ड्राई डाउन ना हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ समर टाइम एंड समर में हम लोग एसी ऑन करके सोते हैं तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मॉइस्चराइज कर रहे हो. एंड डे टाइम में डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एसिड मेक श्योर कि आप प्रॉपर सन प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हो आपके स्किन पर. बिकॉज आफ्टर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एसिड मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फोटोसेंसिटिव बना देता है. और अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, जो भी ये काम कर रहा है रिवर्स हो जाएगा. बहुत ही जल्दी सन आपकी स्किन को बर्न करेगा, अगेन ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं होगा. मैंने कोजिक एसिड के बारे में डिटेल्स में बता दिया. तो जिन लोगों का हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, पोस्ट एक्ने मार्क्स है, मेलास्मा है, स्किन में सन बर्न हो चुका है, सन डैमेज हो चुका है, सन की वजह से डिफरेंट प्लेसेस में ब्राउन स्पॉट हो गया है, डिस्कलरेशन हो गया है फेस का, तो you can give this product a try. I will come up with more such informative videos, so stay tuned and hope you like this video. If you like it, then please give it a big fat thumbs up, share with your friends and make sure that you hit that subscription button and that little bell button beside that so that whenever I upload video you will be notified. Thank you, bye bye, thanks for watching.